Yes, students, let me start with the revision part today. This is Principles of Management, and by whom these are being evolved. That is Mr. Henry Fayol. He was named as the father of management principles. So let me talk about the first sequence-wise in from your NCERT book. That is division of work, or we call it. It's another name is principle of specialization. According to this principle, the work is firstly to be divided into smaller parts, and each part is to be given to those persons who are specialists in it. Means जो जिस करने काम को करने में कैलिबर रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, आपने वो काम उसे ही देना है, so that the efficiency and effectiveness can be increased. कभी भी किसी अनाड़ी बंदे को काम नहीं सौंपिए, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसे वही काम दीजिए, इससे उसकी मोनोटनी भी नहीं होगी. He will be taking interest in that very task, in that very work. So it is very much essential. So whenever the work is being divided, we have to keep in this thing in our mind, that specialization concept is to be taken into consideration, right? Yes, division of work, right? When we see this division of working is being applicable in our industries or in our large scale public limited companies, for that we see that all the departmental heads are being given the departments as per their education, as per their capability, as per their past experience. मान लो मेरे को सेल्स मैनेजर अपॉइंट करना है और उसे मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बनाना है. आई विल बी एनालाइजिंग हिज पास्ट एक्सपीरियंस. Means earlier he was in another company, and whereby at what post or at what designation he was working. For example, he has the same record of the same position in his earlier company with his earlier employer, right, or previous employer. So he will be allocated the same job in our companies as well. Why? Because we know कि इस बंदे को उस डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है. And secondly, he did his MBA in marketing. So whenever the person is from marketing academic background, it is better to give him the sales department. हम उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए we need technical help, we need mechanical help, so that should be given to an engineering background candidate, because he or she is familiar with the working of the machines. मैकेनिकल बैकग्राउंड का अगर बंदा होगा तो मशीन्स को अच्छे ढंग से लुक आफ्टर कर लेगा, मशीन की वर्किंग को वो समझता है, अगर कोई खराबी आ जाती है तो उसे टैकल करने की भी कैपेबिलिटी रखता है. सो सच टाइप ऑफ थिंग्स वी नीड टू फॉलो व्हाइल डिवाइडिंग द वर्क बिटवीन आवर वर्कर्स, बिटवीन आवर employees. So this is what we call division of work. So let me come to the next. We are following the sequence of your book this time. I will not be taking these principles randomly. डिविजन ऑफ वर्क के बाद हमारे पास है, यस, एक लाइन आपको अंडरलाइन करनी है अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी में से. द इंटेंट, इंटेंट मींस इसके पीछे इंटेंशन, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑफ डिविजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट. ठीक है, हमारे पास 20 बंदे हैं, उन 20 बंदों से मेरे को ऑप्टिमम रिजल्ट लेना है, तो इन 20 बंदों में काम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बांटो ना. सेम टैलेंट से आपको ज्यादा से ज्यादा काम लेना है और बेटर वर्क लेना है, यही हमारी इंटेंशन रहती है डिवीजन ऑफ वर्क. तो स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज द ह्यूमन एफर्ट. तो ह्यूमन टैलेंट को आपने वेस्ट नहीं होने देना, तो आपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनमें उनका काम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. Fayol applies this principle of division of work to all kinds of work, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो मैनेजरियल हो. You can observe this principle at work in any organization like hospital or even in the government office, in your own school. You can find this division of work. So whosoever has done PhD or master degree in physics, he or she is taking physics classes. So whosoever has done his master degree or any you can say specialization in the field of commerce, they are taking your commerce classes. So as per our academic records, we are being allocated the timetable in the school. So in our school also, we are following, or our administration is following this division of work, right? Then we have parity. Book हमेशा लिखती है authority and responsibility, but I always change the name and I use a prefix parity between authority and responsibility. Parity between authority and responsibility. पहले तो दोनों टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. पैरिटी का मतलब है बैलेंस, दोनों में बैलेंस होना चाहिए.
ठीक है. Now the question arises, what is the dictionary or literal meaning of authority? Authority means to give command to others, to take the decision. Decision making power को ही authority कहते हैं. और responsibility means an obligation to complete the task. और जो आपको असाइन की गई है टास्क उसे कंप्लीट करने की आपकी ऑब्लिगेशन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. अथॉरिटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इसका डाउनवर्ड एरो है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सो जितनी किसी को अथॉरिटी दी है उसके पैरेलल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करो. अदरवाइज ह्यूमन बीइंग की नेचर है, both of them they are moving in the opposite direction but they should run parallel to each other. opposite direction में मूव होने के बावजूद भी we want कि दोनों में पैरिटी हो. The both should have a balance between them. ठीक है, क्या मतलब है इसका? अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी. You are responsible for it. क्योंकि ह्यूमन बीइंग की नेचर है, जब उनके हाथों में पावर आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, वो उसे मिसयूज करना शुरू कर देते हैं. So in order to avoid this misuses of the power allotted to them, we should make them responsible too. For example, मैंने मार्केटिंग मैनेजर को बोला या मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि तूने 1 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदना. ठीक है, साथ में मैंने ये 1 करोड़ और आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से ले लो. ये मैंने उसे अथॉरिटी दी कि जैसा मर्जी खरीदो. साथ में मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स करी तो हो सकता है वो 70 लाख का खरीदे और 30 लाख अपनी पॉकेट में डाले. लेकिन मैंने साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. द थिंग्स शुड बी और रॉ मटेरियल शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. We can send that material for the lab checking and we will be checking its quality. So once you are make and अगर quality हमें inferior मिली या उसमें कोई खराबी या गड़बड़ मिली, you will be responsible for it. So authority देने के साथ साथ मैंने उसकी responsibility भी fix कर दी. So Taylor fuel was of the view, authority और responsibility दोनों में क्या होना चाहिए? Balance होना चाहिए. So उसने आपको authority का meaning दिया है. Authority means the right to give orders to others. और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग दिया है, दैट इज ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क. राइट. अथॉरिटी इज बोथ, ये यस दिस आई वांटेड टू डिस्कस विद यू. अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. अथॉरिटी फॉर्मल कब होती है? जब ये टॉप टू बॉटम शिफ्ट होती है. मींस आपके सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को जब कोई टास्क करने को देते हैं या अपनी कोई ड्यूटी उन्हें करने को दे देते हैं तो वो क्या है? फॉर्मल. फॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ अथॉरिटी. ही सेज managers required authority commensurate with their responsibility. तो कहता है जितनी किसी को अथॉरिटी दो उसके बिल्कुल इक्वल मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी बनती है. There should be a balance between authority and responsibility. An organization should build safeguards against the abuse of managerial power. मैंने अभी बोला ह्यूमन बींग्स की नेचर रहती है कि जितनी पावर उन्हें ज्यादा मिल जाती है वो उसका मिस यूज करना शुरू कर देते हैं. So in order to avoid this abuse of what should I say, abuse of the power, कि वो अपनी पावर को नाजायज यूज ना करें, उसके लिए हमें साथ में उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए. एग्जांपल बड़ी अच्छी थी, मेरे वाली दी है सेल्स मैनेजर की. मैंने आपको परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर की दी. फॉर एग्जांपल, अ सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट अ डील विद अ बायर. शी फाइंड्स दैट इफ शी कैन ऑफर क्रेडिट, 60 दिनों का अगर क्रेडिट दे देती है तो उस डील को क्या कर सकती है? क्लिंच, मतलब उस पे होल्ड रख सकती है और बदले में कंपनी को ओवरऑल 50 करोड़ का मार्जिन और प्रॉफिट होने वाला. लेकिन हमारे मैनेजर ने इस सेल्स मैनेजर को, मतलब हमारे सीनियर और जनरल मैनेजर ने इस सेल्स मैनेजर को सिर्फ 40 डेज का क्रेडिट देने को बोला. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि किसी बंदे को मैं अथॉरिटी दे दूं कि वो सारी डीलिंग वगैरह करे अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आपको साथ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी हो. ठीक है, एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर बट अथॉरिटी वाज नॉट देयर. अथॉरिटी किस चीज की थी? 60 डेज वो अपने आप एक्सटेंड कर ले क्रेडिट पीरियड. सो हियर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर लेकिन अथॉरिटी वाज मिसिंग, तो भी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई. Similarly, in this example, this manager should not been given the power to offer a credit period of 100 days. तो आपका क्लाइंट आपसे 100 डेज का क्रेडिट पीरियड मांग रहा था, लेकिन आपके पास वो अथॉरिटी नहीं दी गई थी. आपको सिर्फ 40 दिन का क्रेडिट अपने कस्टमर को अलो, क्रेडिट यू नो उधार पे सामान बेचना, और कितने दिनों के बाद पैसे की रीपेमेंट मांगो. सो दिस वाज मिसिंग. सो फ्यूल वाज ऑफ द व्यू, दोनों चीजें एट पैरेलल, एट पार होनी चाहिए. देन ओनली द employees will be in a position to give their best result. Then we have discipline next. Discipline means obedience of the rules and regulation framed in the organization, and everyone is supposed to follow that, especially the employees. So अगर कोई इन रूल्स और रेगुलेशन को नहीं फॉलो करता तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी
action, disciplinary action can be taken. He or she can be penalized or fined, can be levied on him or her. This is what we call discipline. So अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ट्रैक पे रहे, सब कुछ सही ढंग से चलता रहे, सारे लोग रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते रहे, फॉर दैट पर्पस you have to tell them what is the discipline. According to Fuel, discipline requires good superiors at all levels. What is the meaning of good superiors? The superiors should be unbiased. उनको किसी की फेवर नहीं करनी. Prejudices they have to set aside. They have to keep aside. किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना. That is the meaning of good superiors. आप सबके साथ एक ही तरह से पेश आते हैं. आपका बिहेवियर सबके साथ एक जैसा ही रहता है. Clear and fair agreements. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर ने या बॉस ने जो बोला वो हमारे एम्प्लॉयज को समझ आ गया. मतलब इस तरह से एग्रीमेंट है, हम लोगों ने जो उन्हें बोला उनको पता चल गया और हमने बोला कि आपने ये फॉलो करना है. एंड जुडिशियस application of penalty. This line once he picked in CBSE and he asked you to identify. This is a principle which stresses upon judicious application of the penalty. Means नाजायज किसी के ऊपर penalty और फाइन नहीं लगाना. ठीक है, जिसने सच में कोई गड़बड़ करी है या कोई धोखाधड़ी करी है या कोई इनडिसिप्लिन एक्शन लिया है, इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करी है, then only you will be taking the corrective measures against them, then only you will be taking the disciplinary action against them. ठीक है, so there should be judicious application of the penalty. Then unity of command, very simple, सबको पता रहता है, ये तो सबको याद हो ही गया होगा. Unity of command, what it means? Unity of command. At a single instance of time, my one superior should give order to one employee, or one worker should get order only from one boss. So this is boss number one, और इसके अंदर वर्कर नंबर 1 है. ठीक है, तो बॉस नंबर 1 वर्कर नंबर 1 को ऑर्डर देता है और वर्कर नंबर 1 सिर्फ बॉस 1 को ही क्या है, एट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ टाइम उसी को ही क्या है, आंसरेबल. लेकिन अगर बॉस 1 और इधर बॉस 2 और इधर बॉस 3 एक ही टाइम पे वर्कर नंबर 1 को ऑर्डर देंगे तो इट इज नॉट डिजायरेबल. इसे क्रॉस लगाएं. इट इज नॉट डिजायरेबल. दिस इज स्ट्रिक्ट, दिस इज डिजायरेबल. सो फ्यूल सेज कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला सिस्टम फॉलो करना है. If this will happen, this worker will get confused कि मैं boss 1 का order मानूं, 2 का मानूं कि 3 का मानूं. Sooner or later, he will feel unsatisfied from your work culture and he will try his best to leave your organization and he will be trying to find a new job for him. So we should avoid such type of circumstances. We should always make our workers happy at their workplace. And in order to make them happy, they should feel satisfied at their workplace. And when they will be feeling satisfied, when they are not being overburdened, they are not being stressed, they are not being exploited in the hands of bosses. वो कह रहा है तूने मेरी बात नहीं मानी, चल मैं तेरे को देख लूंगा, तेरी प्रमोशन पे मैं रोक लगवा दूंगा. मतलब इस तरह की धमकियां देना, that should not be the culture of our organization. ठीक है, तो धीरे धीरे बात बाहर ट्रेवल होगी. आने वाले टाइम में कोई भी आपकी कंपनी में जॉब करने को तैयार नहीं होगा if such type of work culture you are creating in your organization. That was unity of command. One boss should give order to one worker at a single instance of time. ठीक है जी. Then we have, has he given any example here? Yes, some quoted lines I will read. Fuel gave a lot of importance to this principle. He felt if this principle is violated, ये line उसने उठाई थी. If this principle is violated, authority is undermined. Authority is undermined means आपके वर्कर ने किसी भी बॉस की बात नहीं मानी तो आपकी पार कहाँ गई? पार टू गिव ऑर्डर. आपकी बात ही नहीं वो मान रहा क्योंकि एक टाइम पे 5 बॉसेस ने उसे ऑर्डर दे दिया, वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा. So authority is undermined. That is the consequence for the violation of this principle. Authority is undermined. Discipline is jeopardy. Discipline गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. Order disturbed. Order disturbed means right things at the right places नहीं रहेंगी. आपका ह्यूमन बीइंग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बारे में सोचेगा. स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड, वही स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड. ठीक है, दे विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टेबिलिटी मतलब एक प्रिंसिपल के फॉलो ना होने से हमारा डिसिप्लिन का प्रिंसिपल भी गया, हमारा ऑर्डर का प्रिंसिपल भी गया, हमारा स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल भी गया. सो बेटर है कि आप अपने वर्कर को हमेशा खुश रखो.
वर्कर को खुश रखने का मतलब क्या है, उसे वही काम करने को दो विच ही इज एबल टू डू। डोंट फोर्स हिम कि वो आपके ऑर्डर को ना बोले। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्योंकि एक टाइम पे मान लो एक ने बोला कि जा गोडाउन में से इतना सामान लेके आ, दूसरे ने साथ में बेल लगा दी मेरे लिए चाय लेके आ, ठीक है, तो ही विल से कि मेरे को उसने बोला हुआ है उस करने में पहले उसका काम करूंगा, इट मींस कि आपके काम को इनडायरेक्टली उसने ना बोल दी ना। So don't make your subordinates like robots and machines. You can't treat them like machines and robots. You have to treat them like human beings. They have their sentiments, they have their emotions. They can't work around the clock for you. Okay, they also need certain rest. They don't want keep from here and there. They should every time get order. So they will be after the fulfilling of the order of their bosses. Such type of system should always be avoided. So this was the underlined or single inverted commas पे he has closed in your book. Yes, another, ये भी याद रखना है, ये भी मैंने आपको बताना था, ये आपकी बुक में लिखा ही हुआ है. Another name of unity of command is dual subordination. Dual subordination means एक टाइम पे आप एक से ज्यादा बॉसेस के सबऑर्डिनेट, मींस एक से ज्यादा जब आपके बॉसेस होंगे तो डुअल सबऑर्डिनेशन होगा. दैट शुड बी अवॉइडेड. दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन, ताकि उसके माइंड से कंफ्यूजन रिमूव हो जाए कि मैं पहले किसका काम करूं बाद में किसका काम करूं. बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है. सपोज अ सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच अ डील विद द बायर and is allowed to give 10% discount by the marketing manager. Marketing manager ने बोला 10% डिस्काउंट दे देना और डील फाइनल कर. बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि आप 5% से ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते. तो दो बॉसेस ने एक टाइम पे एक ही डील के लिए अलग अलग परसेंटेज बता दी, तो सेल्स मैनेजर किसकी बात माने और किसकी ना माने. So now there is no unity of command. This can be avoided if there is a coordination between various departments. Means मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, which is missing in this case, right? This is missing in this case. With the help of coordination between different departmental heads, we can avoid such type of situation. We can make our workers happy. We can make our workers satisfied with our work culture by avoiding this dual subordination, right? So each and every line I read from your NCERT, I asked you to underline the important points or taglines of the paragraph so that you can be able to identify your respective principles in the paper, right? Now come to the unity of command. इसके लिए मैं हमेशा एक ही कहावत बोला करती हूँ, अपनी खिचड़ी अलग अलग नहीं पकानी, अपना राग अलग अलग नहीं अलापना, अपनी डपली अपना राग या गाना नहीं गाना. जो आपके हेड ने आपको बोला है आपने वही करना. This is what we call unity of direction. Means every member of that group will be moving in that direction where your head has told to you. जहां पे आपके हेड ने आपको मूव करने को बोला है आपने वहां चलना है. उसने बोला है कि राइट में जाना है सबने, तो एक राइट में जा रहा है, दूसरा लेफ्ट में जा रहा है, फिर तीसरा राइट में जा रहा है, एक मिडिल में ही कहीं पे रुक जाता है, काम ही नहीं करता. So such type of situation we should always avoid. One head, one plan. One head, one plan. This is the tagline of this principle. ठीक है, जो काम आपके हेड ने आपको बोला है, जो उसने चॉक आउट किया है, जो उसने प्लान किया है, आपने उसको क्या करना है, फॉलो करना है. आपने अपनी मनमानियां नहीं करनी. You are here in the organization to do what you are supposed to do and what you are being asked to do. जो आपको बोला गया है करने को आपने वही करना, राइट? तो आपने अपने हिसाब से अपनी डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करना. Unity means oneness. Oneness of direction means everybody will be moving in the same direction to achieve the organizational goal, and you all are supposed to give the priority to the achievement of the organizational goals. आप अपनी मनमानियां यहाँ पे नहीं कर सकते हो. This is what we call unity of direction. One head, one plan. Example पढ़ेंगे. If a company is manufacturing motorcycles as well as cars, दो अलग-अलग डिपार्टमेंट है, then it should have two separate divisions for both of them. क्योंकि हर डिवीजन का अपना टारगेट होगा. ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज. हर डिवीजन का अपना इंचार्ज होगा. प्लान्स होंगे, एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज होंगे. ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ दीज टू डिवीजंस ओवरलैप, क्योंकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों में अलग अलग रॉ मटेरियल चलने चाहिए, दोनों में अलग अलग एम्प्लॉइज होंगे. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. नीचे पैराग्राफ में आपको तीन डिफरेंस दे रखे हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के. पहला डिफरेंस मीनिंग का है भाई. सेकंड डिफरेंस, इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन. सो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड अर्लियर आई रोट ऑन द बोर्ड डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करता है, और वो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को क्या करता है, अवॉइड करता है. ओवरलैपिंग,
दो डिपार्टमेंट्स आपस में मर्ज नहीं होने चाहिए, दोनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग काम है. वन इज व्हाट कार मैन्युफैक्चरिंग एंड अनदर इज व्हाट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग. आपकी कंपनी ऑटोमोबाइल है, जैसे हमारे मारुति सुजुकी के 2 व्हीलर्स भी आते हैं, 4 व्हीलर्स भी आते हैं. तो दीज 2 डिपार्टमेंट्स शुड वर्क लाइक सेपरेट डिपार्टमेंट्स. ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. इम्प्लीकेशन, जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो हमारे एम्प्लॉय को फोकस करता है कि एम्प्लॉय शुड नॉट बी ओवरबर्डन. और जो हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ये हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करता है. बिकॉज व्हेन वी से वन हेड वन प्लान, मतलब जो आपको करने को बोला गया है आपने वही करना है. आपने अपने इंडिविजुअल गोल्स को कोई प्रायोरिटी नहीं देनी. You are here in the organization for the achievement of organizational goals. So you have to move, you have to work what your head is saying you to do. जो आपका हेड आपको करने को बोल रहा है आपने वही करना है, आपने अपनी मनमानियां नहीं करनी. So this was the overall crux of your unity of direction. Any doubt to anyone till now? आपने कभी इसको पढ़ा हो या टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो आपको कोई डाउट लगा हो तो you may ask. Any doubt to anyone, you may ask. So next name पहले समझिएगा प्रिंसिपल का, then I will explain to you. नाम ही बड़ा लंबा चौड़ा रखा है. Subordination of individual interest to general interest. So this is our 6th point we are taking. Let me write the name of this principle first. Subordination of individual interest to general interest. क्या मतलब? किसी एक बंदे के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी, किसी एक पर्सन को अपने फेवर नहीं करनी. यू हैव टू स्नब द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू द जनरल इंटरेस्ट. जो चीज, जो डिसीजन, जो प्लानिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में है, यू हैव टू गो विद दैट. You will not be giving the favor to a single individual. So this is what we call subordination of individual interest. Individual interest को दबा दो, किसके तले? General interest के तले. It means कि we have to give the priority to our general interest. So what is in the favor of? For all the employees, that policy, that decision we will be taking. ये नहीं है you are belonging to the Sikh religion and one of your friends' son is there, he is also belonging to the same religion and you are just giving him importance. ठीक है, though he is not a deserving candidate, but you are just announcing the promotion for him. It should not be there. ठीक है, जो हमारी सारी एम्प्लॉइज की फेवर में है आपने वही डिसीजन लेना है भाई. Right? This is what we call subordination of individual interest to general interest. Every worker has some individual interest. हर एक की अपनी कोई फैमिली बैकग्राउंड है, हर एक की कोई प्रॉब्लम है, हर एक का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हमने उन सब के पर्सनल इंटरेस्ट साइड पे रखने हैं. मैंने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फायदे के बारे में जो चीज है वही डिसीजन लेना है. Like when the profitability of the overall organization will enhance, definitely the salary of each and every employee I hired, उनकी सबकी सैलरी बढ़ जाएगी. So you have to give the importance to the overall goal of the organization. On the other hand, an employee may want to get the maximum salary while working the least. हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारा प्रॉफिट बढ़े और दूसरी तरफ से एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं? कम काम करके ज्यादा सैलरी मिले. तो ऐसा तो नहीं हम ना करने देंगे. हम उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट का थोड़ा ना कि हाँ आप आके बेकार बैठ जाओ, हम आपको महीने के एंड में सैलरी दे देंगे. नो वे. We have to extract the maximum output from them. Then only we will be able to earn maximum profit, and that profit will definitely be announced in the form of profit participation to the employees, in the form of bonus, in the form of increment in the salary, and this will happen only if you are giving the importance to the general interest of the company. You are not giving the importance or priority to the single party's interest. In all such situations, the interest of the group will supersede. Supersede means उसको priority मिलेगी, वो उसको दबा देगा individual interest को अपने तले. So this is so because larger interest of the workers and shareholders are most important. Similarly, investors और shareholders के interest को अपने mind में रखना है. Profit बढ़ेगा तभी तो मैं उन्हें dividend दे पाऊंगी. मैं किसी एक person की interest को कभी focus नहीं करूंगी. ठीक है, as the managing director of my company, I will always be giving the priority to the general interest. ठीक है, और general interest क्या होता है? A manager can ensure this by his or her exemplary behavior. For example, he should not fall into the temptation of misusing of his power for the individual. अपने फैमिली बेनिफिट के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के बेनिफिट के लिए आपको अपनी पावर को मिसयूज नहीं करना. आपने जनरल इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स को माइंड में रखना है. दिस विल रेज हिज और हर स्टेचर इन द आईज ऑफ वर्कर्स. तो वर्कर्स को लगना शुरू हो जाएगा कि हमारा मैनेजर किसी के साथ इनजेन्युइटी नहीं करता, हमारा मैनेजर सबके साथ जेन्युइन है.
जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हीं की वो आगे सिफारिश करता है प्रमोशन के लिए, उन्हीं का नाम आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करता है. सो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पलरी बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ द वर्कर्स सो दैट दे कैन आल्सो कम टू नो कि यस इट इज what our general interest should always supersede the individual interest. हम किसी एक बंदे का पक्षपात नहीं करेंगे, जो हमारी ओवरऑल कंपनी के फेवर में है, that decision only we will be making, we will be taking, right, at the right time. So any doubt till now you may ask. Rest of the things we will continue tomorrow.